Hare Krishna. Welcome to all of you. So today we are going to discuss verse 7.12. Thank you, Brenda Mataji. Prashant Prabhu, thank you. So can someone please share the screen? Thank you, Nisha Mataji. Yes, for this verse 7.12, 7 chapter 12th verse. In this moment. तो थोड़ा जूम कर सकते हैं? Yes. So we can recite the verse now. ये चैव सात्विका भावा, ये चैव सात्विका भावा, राजसामसाश्च ये, राजसामसाश्च ये, मत एवेति तान् विद्धि, मत एवेति तान् विद्धि, न त्वहं तेजुते मयि, न त्वहं तेजुते मयि, ये चैव सात्विका भावा, राजसामसाश्च ये, मत एवेति तान् विद्धि, न त्वमां तेषु ते मयि, ये चैव सात्विका भावा, राजसामसाश्च ये, मत एवेति तान् विद्धि, न त्वहं तेषु ते मयि, Yes, someone can please read the translation. Hare Krishna, know that all state of being, be they of goodness, passion or ignorance, are manifested by my energy. I am, in one sense, everything, but I am independent. I am not under the modes of material nature, for they, on the contrary, are within me. Hare Krishna. Thank you, Mataji. So here Krishna is saying that all state of being, whether they are in the mode of goodness, passion or ignorance, they are manifested by his energy. And he is in everything, but he is independent. And he is not under the modes of material nature. Okay, but rather they are within him. So it is just like that. What Krishna says is that he is within everything, but yet he is outside of everything. So how is it like that? It is just like that. How Krishna is there within each and every atom. At the same time, Krishna is not affected by the material modes, or Krishna is not affected by the material nature. It's outside of the material nature. Actually, if we try to understand Krishna through our intelligence now, हम नहीं समझ सकते. Because Krishna has created us, and He is supreme personality of Godhead. He is infinite, and we are infinitesimally small. हम बहुत छोटे हैं, कृष्णा बहुत बड़े हैं. तो एक्चुअली हमारी इंटेलिजेंस हमको समझ नहीं सकते, बट कृष्ण थोड़ा बहुत हिंट देते हैं हमको समझने के लिए, राइट? तो यस, थैंक यू निशा माता जी बाला. सो कृष्णा यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? कृष्णा बोल रहे हैं कि जितने भी ये जो मटेरियल मोड्स ऑफ नेचर हैं, मोड ऑफ गुडनेस, पैशन, इग्नोरेंस, रजस, तमस, सात्विक, ये जो तीनों जो गुण हैं, ये तीनों गुण जो है वो कृष्णा से आते हैं, पर कृष्णा उन तीनों गुणों से अफेक्टेड नहीं होते हैं. ही इज आउटसाइड ऑफ दिस. These three gunas are within him, and he is the reason for these three gunas, but he is outside of it. मतलब भगवान इन गुणों से अफेक्ट नहीं होता है. हम जो भी काम करते हैं इस दुनिया में, maybe we can stop sharing. So हम जो भी काम करते हैं इस दुनिया में,
वो इन 3 गुणों के अधीन होके करते हैं, सतोगुण, रजोगुण या फिर तमोगुण। Also, I request if it's possible for some of you, then if you can switch on your videos, it will be nice so that I can relate with you more. I can understand also. मतलब audience को कितना क्या समझ रहा है. If possible for some of you, you can put your videos on. Otherwise, ठीक है, we'll continue. Okay. So यहाँ पे कृष्णा ऐसा बता रहे हैं कि तीनों गुणों से बाहर है और हम इस दुनिया में जितने भी जीव हैं, हम इन 3 गुणों से अफेक्टेड रहते हैं, है ना? कौन कौन से 3 गुण हैं? Yes, thank you, प्रशांत निशा माता जी. So रजोगुण, सात्विक गुण, रजोगुण एंड तमोगुण, है ना? That is mode of goodness, passion and ignorance. इन 3 गुणों से हम अफेक्टेड होते हैं. हम कुछ भी किसी भी मोमेंट पे कोई भी हमारा थॉट होता है, कोई भी हमारा एक्शन होता है, इन 3 गुणों के कारण होता है ना? हमको ऐसा लगता है कि नहीं, मैं तो खुद से डिसीजन ले रहा हूँ या ले रही हूँ, मैं खुद से सोच रहा हूँ. हम खुद से कुछ नहीं सोच रहे. We are being manipulated by these 3 modes of material nature, है ना? So Krishna declares also in Bhagavad Gita, Maya Adhyakshana Prakriti Suyate Sacharacharam. So this Prakriti works under him, right? But अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते. अहंकार में विमूढ़ात्मा क्या सोचती है? पॉलिसी को मैं कर रहा हूँ या मैं कर रही हूँ. हम नहीं कर रहे हैं. हमको हमारे जो कर्म है पहले के जन्म के, उन कर्मों की वजह से हमें एक पर्टिकुलर इम्पिटस मिलता है ना? जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको थोड़ा ऐसा समझते हैं, जैसे कोई अल्कोहलिक है, उसने पूरा लाइफ बहुत अल्कोहल पिया है ना? तो नेचुरली उसको किस तरह का थॉट आएगा? तमोगुण. हाँ, तमोगुण तो आएगा. थॉट किस तरह के आएंगे? इंक्लिनेशन क्या रहेगा? अगर लेटर से उसने एक अल्कोहल की बोतल देखी तो उसको क्या थॉट आएगा? उसी बॉटल की थॉट आएंगे कि मैं कब पीऊं. राइट. तो ही विल गेट दैट थॉट कि वो बोतल देख के उसको क्या मनाएगा? ये मैं कब पीऊं. ऐसे कोई बहुत स्मोक करता है और अगर वो सिगरेट का पैकेट देखे तो उसको क्या थॉट आएगा कि मैं सिगरेट कब पीऊं. लेकिन जिसने कभी स्मोक नहीं किया, कभी ड्रिंक नहीं किया है, वो इनको देखेगा तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको वो इम्पिटस नहीं मिलेगा. सो सिमिलरली हम लोगों ने जो हमारे पास्ट लाइफ में जो कर्म किए हुए हैं, उनकी वजह से हमारे अंदर कुछ संस्कार बने हुए हैं हमारे मन बुद्धि में, है ना? सो और सटल माइंड, उसमें एक संस्कार बने हुए हैं. उन संस्कारों की वजह से हमें पर्टिकुलर थॉट्स आते हैं, इम्पिटस मिलता है. एनवायरमेंट तो है ना? लेकिन हमको उस एनवायरमेंट में, उसी एनवायरमेंट में हर एक को अलग अलग थॉट्स आते हैं, है ना? किसको, जैसे फॉर एग्जांपल कोई हमको बोलता है कि तुम गधे हो, जस्ट गिविंग एग्जांपल, आप ऐसे पर्सनली मत दो, पर कोई हमको ऐसे बोलता है, यह सुनता माता जी, तो हमें से कई लोगों को बहुत तेज गुस्सा आएगा, बहुत तेज गुस्सा आएगा. हाउ डेयर यू स्पीक लाइक दिस, आई एम सो इंटेलिजेंट, आई एम सो स्मार्ट, आई एम सो टू गुड. लेकिन किसी को मीडियम गुस्सा आएगा, किसी को शायद गुस्सा ही ना है, पागल कुछ भी बोलता रहता है, लाइक दैट, राइट? तो ये हमारे पहले के संस्कारों का प्रभाव है. इन पहले के संस्कारों की वजह से हमें जो 3 गुण हैं, उनमें से एक पर्टिकुलर गुण प्रधान हो जाता है, एक पर्टिकुलर गुण प्रीडोमिनेंट हो जाता है. वो सतो गुण हो, रजोगुण हो, तमोगुण हो, सिचुएशन वही है, बोला गया वही है ना? कर्म के हिसाब से किसी ने हमको बोल दिया, हमारे कर्म थे इसलिए किसी ने हमको बोला, हमारा अपमान होना था इसलिए उसने हमको बोला. लेकिन हम कैसे रिएक्ट करते हैं वो डिपेंड करता है कि हम कौन से मोड से अफेक्ट हो रहे हैं. ओके? और वो होता है हमारे पहले के संस्कारों के द्वारा निश्चित होता है. और इस जन्म में हमारे कर्म, हमारी भक्ति और हमारे दृढ़ निश्चय, हमारा डिटर्मिनेशन, उससे डिसाइड होता है कि हम किस तरीके से रिएक्ट करते हैं. सिचुएशन नहीं बदलेगी, सिचुएशन वैसे ही रहेगी जैसे हमारे कर्म आ रहा है, लेकिन हम जैसे रिएक्ट करते हैं वो हम किस मोड में काम कर रहे हैं, किस गुण के अधीन में काम होके कर रहे हैं, उसके ऊपर होगा. जैसे कोई एग्जांपल ना, किसी ने बहुत वायलेंट मूवीज देखी है इस लाइफ में, तो अगर किसी ने उसको छेड़ा तो आपको क्या लगता है, वो पैर पकड़ेगा या हाथ जोड़ेगा, भगवान का नाम लेगा, क्या करेगा? वायलेंट होगा. यस, वायलेंट होगा. जैसे मैंने आपको पता है, वो लास्ट टाइम मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर किसी ने बहुत हॉरर मूवी देखी हो, है ना, और फिर रात को सोने जाए तो उसको क्या लगता है? भूत है आजू बाजू में. हाँ, आजू बाजू भूत है. परफेक्टली राइट निशाला. आजू बाजू भूत है, क्यों? क्योंकि उसने वो संस्कार डाला है ना? तो एनवायरमेंट तो वही है, वही रात है, सबके लिए रात है, लेकिन इस पर्टिकुलर पर्सन को डर लग रहा है.
इसको क्यों डर लग रहा है इसको? क्योंकि इसने क्या किया है, बहुत ज्यादा तामसिक प्रवृत्ति का दृश्य देखा है, बहुत ही ज्यादा मोड ऑफ इग्नोरेंस का उसने मूवी देखा है, बहुत ज्यादा डीप डाउन, और इसलिए उसको उसी तरीके से उसकी बॉडी रिएक्ट कर रही है, उसका माइंड रिएक्ट कर रहा है, राइट? तो हम जो देखते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, उसका सबका हम पे प्रभाव पड़ता है। पिछले जन्मों के संस्कार तो यही है, इसी जन्म के भी पड़ते हैं। तो हमको बहुत केयरफुल रहना चाहिए कि हम किस मोड में काम कर रहे हैं। हम मोड ऑफ गुडनेस में है, पैशन में, इग्नोरेंस है, और ये सब चीजों का प्रभाव पड़ता है। इनफेक्ट कृष्ण ने एक पूरा चैप्टर भगवद गीता में इसको डिवोट किया हुआ है ना, 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। हम जो खाते हैं, जैसा अन्न वैसा मन, है ना, राइट? तो हम जो खाते हैं वो किस तरह का है फूड? अगर हम नॉनवेज खाते हैं तो मोड ऑफ इग्नोरेंस बढ़ेगा, है ना? हम बहुत ज्यादा तीखा खाते हैं तो मोड ऑफ पैशन बढ़ेगा। हम सादा खाना खाते हैं तो मोड ऑफ गुडनेस बढ़ेगी। तो ये हमारे ऊपर है कि हम क्या प्रीडोमिनेटली मोड हमारे ऊपर एक्ट करने देना चाहते हैं। बट कृष्णा इज आउट ऑफ दिस। कृष्णा पे फर्क नहीं पड़ता, एंड बिकॉज कृष्णा इज आउट ऑफ दिस, कृष्णा नेवर मेक्स अ मिस्टेक। इसलिए कृष्णा का नाम क्या है? अच्युत। अच्युत मीन्स वन हु नेवर फॉल्स डाउन, बट वी आर ऑलवेज फॉलिंग डाउन। We are always falling down because we are always under the modes of material nature. But because we are under the modes of material nature, हमसे mistakes होती है ना? अब जैसे जो मोड ऑफ इग्नोरेंस में, मोड ऑफ इग्नोरेंस की क्या पहचान होती है? लेजी फील करना। हाँ, परफेक्टली राइट। माता जी ने आंसर भी एकदम धीरे धीरे बोला है। लेजी फील करता है पर्सन, डोंट टेक इट। तो उसको है ना बहुत लेजी फील करता है पर्सन, प्रमाद और आलस्य, राइट? प्रमाद एंड आलस्य। सो आलस्य प्रदान होता है, मेरी जिंदगी का एक ही सुख है, मैं सोता रहूं। जिंदगी में ऐश का डेफिनेशन क्या है? बस दिन भर सोऊं, खाऊं सोऊं, खाऊं सोऊं, खाऊं सोऊं, यही हमारा संडे है, यही हमारा मंडे है। इनका डेफिनेशन है आराम का, ऐश का। So this is mode of ignorance, right? या बहुत ज्यादा अल्कोहल पी के पड़े रहने का, अल्कोहल पी के होता क्या? यही होता है ना, you forget yourself, you are totally down, right? तो अल्कोहल पी के पड़े रहो, इंटॉक्सिकेशंस लेते रहो, पड़े रहो। दिस इज मोड ऑफ इग्नोरेंस। और मोड ऑफ पैशन में क्या होता है? यस, एग्रेशन तो रहता है, एग्रेड। और क्या? कॉम्पिटिटिवनेस रहता है, ओवर एम्बिशन। यस, ओवर एम्बिशन। सब मोड ऑफ पैशन की खास बात क्या होती है? पर्सन इज वेरी एम्बिशियस, पर्सन वांट्स टू अचीव एवरीथिंग। सब कुछ मेरे कंट्रोल में, सब कुछ मेरे हिसाब से, मैं सब कुछ, मैं दुनिया जीत लूं, कर लूं दुनिया मुट्ठी में, है ना? मिट्टी में नहीं, सॉरी, मुट्ठी में। पर्सन feels that he deserves to get everything which is there under this sky. सब कुछ मेरा हो जाए, मैं जितना पैसा कमा सकता हूँ कमा लूं, मैं जितना प्रॉपर्टी इकट्ठी कर सकता हूँ कर लूं, मैं जितना लोगों पे हुकूमत कर सकूं, कंट्रोल कर सकूं, उतना कर लूं। मेरे अंडर में 100 लोग, वो सब मुझे दंड मत दे, सब मुझे प्रणाम करें, पद प्रतिष्ठा सब कुछ मेरा हो। I want to be great. That is mode of passion, right? Person wants to achieve controllership over everything. He wants to be proprietor. वो peace formula का just उल्टा है। You remember the peace formula? Yes, Prabhuji. Krishna is the controller, Krishna is the proprietor, and Krishna is the enjoyer. हाँ, यहाँ मोड ऑफ पैशन में पूरा उल्टा। I am the proprietor, सब कुछ मेरा है और मैं जितना इकट्ठा करना चाहूँ उतना करूंगा। And I am the controller, मैं सब लोगों को कंट्रोल करना चाहता हूँ, सब चीजों को कंट्रोल करना चाहता हूँ। And I am the enjoyer. Why I want to do all this? Because I want to enjoy as much as possible. So this is mode of passion. And then what is mode of goodness? पैशन और इग्नोरेंस में तो फटाफट आंसर कर दिया आप लोगों ने, गुडनेस का किसी को याद नहीं है। क्या 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 बताइए? शांत रहना, काम रहना सारे सिचुएशंस में। Yes, perfectly right, Sanamata ji. शांत रहना, काम रहना. So in mode of goodness, person is very satisfied. Is very contented. Cool, composed. Right? He's not in hurry. He's not, thinking that I should acquire so much in life. He's happy, satisfied. एक अंदर से happiness होती है. Mode of goodness itself gives a kind of happiness within. Mode of passion में restlessness होती है, restlessness. शांति से नहीं बैठ सकता वो. Restlessness रहेगा हमेशा. ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है, वो करना है.
इनफैक्ट एक तरीके से आप ऐसे भी देख सकते हैं कि मोड ऑफ इग्नोरेंस मतलब पास्ट में जीता है वो, ऑलवेज लेमेंटिंग, अरे मैं ऐसा कर लेता तो अच्छा हो जाता, मैं वैसा कर लेता तो अच्छा हो जाता, अरे मेरे से ये गलती हो गई, मैंने वो गलती कर ली थी, अभी मैं ये नहीं करता तो मेरे साथ अभी ये हो रहा होता, क्या ना, ऐसा क्यों हो गया, मेरे साथ ही क्यों हो गया, ये सब मोड ऑफ इग्नोरेंस का है, राइट? लेमेंटेशन, लॉट ऑफ लेमेंटेशन। देन मोड ऑफ पैशन में क्या होता है? फ्यूचर में जाते हैं, ये भाई साहब फ्यूचर में रहते हैं मोड ऑफ पैशन वाले, फ्यूचर में आगे जाके मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे वो कंपनी स्टेब्लिश करनी है, मुझे इतना पैसा कमाना है, मुझे प्रमोशन चाहिए, मुझे घर में ये टिक करना है, मुझे घर में वो टिक करना है, मुझे ये वाली कार खरीदनी है, मुझे है ना आज मेरे पास 1 लाख रुपए, कल मुझे 10 लाख हो जाना चाहिए, फिर मैं उसमें इन्वेस्ट करूंगा, फिर उसमें इन्वेस्ट करके मैं उसको 20 लाख कर दूंगा। प्रोएक्टिव नहीं बोल सकते निशा माता जी, प्रोएक्टिव इज अ गुड टर्म, we can say he is very impulsive and restless, that is mode of passion, है ना? Proactive is a good term actually, it's not proactive. Proactive is like glorification, right? Someone is proactive, it's not proactive, it's restless. Yes, Can you say greed? Can we say greed? yes, definitely greed is there. Greed is very much a predominant symptom of mode of passion, right? Greed, controllership, enjoying mentality, all those things are there, है ना? So, मैंने बताया ना आपको 3 चीजें, प्रोप्राइटरशिप, कंट्रोलरशिप एंड एंजॉयमेंट मेंटालिटी। तो जो प्रोप्राइटरशिप है, व्हाट इज दैट? ग्रीड ओनली, सब कुछ मेरा हो जाए ना। एंड देन मोड ऑफ गुडनेस में क्या होता है? ही लिव्स इन प्रेजेंट, ही लिव्स इन प्रेजेंट। सो मोड ऑफ पैशन में पर्सन लिव्स इन फ्यूचर, मोड ऑफ इग्नोरेंस में पर्सन लिव्स इन पास्ट, मोड ऑफ गुडनेस में पर्सन लिव्स इन प्रेजेंट। तो वी शुड ट्राई टू लिव इन प्रेजेंट, वी शुड बी हैप्पी जो हमको लाइफ में जितना मिल रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमको ग्रो नहीं करना है, ऑब्वियसली वी हैव टू ग्रो। आइडियली इज दैट सम अमाउंट ऑफ पेशेंस, सम अमाउंट ऑफ इग्नोरेंस इज आल्सो रिक्वायर्ड। अभी कोई बोलेगा प्रभु जी क्या बात कर रहे हो, इग्नोरेंस क्यों चाहिए? यस, व्हाई वी रिक्वायर इग्नोरेंस? सम अमाउंट, नॉट प्रीडोमिनेंट, सम अमाउंट। व्हाई सो? यस, थैंक यू तेजस। फॉर स्लीप, सोने के लिए चाहिए, नहीं नींद कैसे आएगी? तो सोने के लिए रिक्वायर, यस, लाइक तो सोने के लिए वी रिक्वायर सम अमाउंट ऑफ इग्नोरेंस। एंड पैशन क्यों चाहिए? दैट इज इजी। व्हाई वी रिक्वायर पैशन? दिन भर काम करने के लिए। हाँ, काम कैसे करेंगे? इम्पीटस कैसे आएगा, राइट? अगर आप पूरा सेटिस्फाइड, यस, टू बी एक्टिव, अगर पूरा दिन आप सेटिस्फाइड हो, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कामचति हम सर्वेश वो वाली स्टेज में हमें तो काम नहीं होगा ना भाई। प्रसन्नात्मा, बैठे हुए आराम से, न शोचति न कांक्षति, न शोचति मींस नो लेमेंटेशन, न आकांक्षति, आकांक्षति मींस नो डिजायर्स। नहीं, अगर ऐसा रहेगा तो काम ही नहीं करेगा इंसान। एनीवे, बट दैट्स अ वेरी ग्रेट स्टेज, बट दैट इज इवन अबव मोड ऑफ गुडनेस। ये जो मैं बात कर रहा हूँ, दैट इज द वर्ड स्पोकन बाय कृष्णा इन भगवद गीता। बट इन आवर केस, we have to have some mode of passion also, because we have to achieve something in life, we have to do something, we have to contribute something, है ना? हमको हमारी फैमिली के लिए कुछ करना है, बच्चों के लिए कुछ करना है, या फिर सोसाइटी के लिए कुछ करना है, कंट्री के लिए कुछ करना है, यू हैव टू कंट्रीब्यूट, राइट? तो उसके थोड़ा मोड ऑफ पैशन चाहिए, थोड़ा। ये जब बहुत ज्यादा हो जाता है ना, तो ग्रीड में कंट्रोल कन्वर्ट हो जाता है, कंट्रोलरशिप में कंट्रोल हो जाता है। एंजॉइंग मेंटेलिटी एक लिमिट के जब बाहर हो जाती है ना, तो हम लोगों को एक्सप्लॉइट करने लगते हैं, क्योंकि हमको इतना एंजॉयमेंट चाहिए कि हमारे कोटे में जो आ रहा है वो हमको सफिशिएंट फील नहीं हो रहा है। तो देन वी स्टार्ट एक्सप्लॉइटिंग अदर पीपल, है ना? तो हमको ये नहीं करना है। सो वी हैव टू रियलाइज दैट यस, वी हैव टू हैव सम अमाउंट ऑफ पेशेंस, बट इट शुड नॉट गो बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट। देन कम्स इज द मोड ऑफ गुडनेस। ओके, सो वी रिक्वायर प्रीडोमिनेंटली मोड ऑफ गुडनेस, सो दैट हम ये रियलाइज करें कि हम यहाँ पे लोगों को एक्सप्लॉइट करने के लिए नहीं आए इस दुनिया में, ना हम यहाँ पे दिन भर सो के हमारा पूरा मनुष्य जीवन खत्म करने के लिए आए। हम यहाँ पे आए ताकि हम कृष्णा से वापस ज्वाइन बैक हो सके, है ना? सो हमको जितना हमारे कोटे में मिलता है उसमें वी हैव टू बी सेटिस्फाइड। थोड़ा सेटिस्फेक्शन चाहिए, है ना? संतोष हमारे कोटे में जो है वो मिलेगा। हाँ, ऑब्वियसली मेहनत करनी है, आलसी होके नहीं पड़े रहना है, फिर वो मोड ऑफ इग्नोरेंस हो जाता है। कई लोग ना क्या करते हैं ना, स्पिरिचुअलिटी को एक्सक्यूज बनाते हैं कुछ नहीं करने के लिए, विच इज वेरी रॉन्ग, राइट? So that is mode of ignorance. Mode of goodness नहीं है वो, mode of ignorance है। Please understand the difference. कई लोग सोचते हैं कि ना
जो हमारे कोटे में वो आ जाएगा, भगवान जितना देंगे आ जाएगा, है ना। तो जो परमहंस हैं उनकी कॉपी करने की कोशिश करते हैं, जो उस स्टेज पे है नहीं वो, राइट। हाँ, जैसे संत तुकाराम थे, he was not worried, but then what he was doing throughout the day? हरि कीर्तन, हरि नाम कीर्तन। वेरी गुड। तो आप कितना जपा करते हैं पूछ लेने का खुद से, हम कितना माला जप करते हैं दिन भर में, राइट। तो हमको हमारा मतलब पता चल जाना चाहिए अपना क्या लेवल है, राइट। तो वी शुड नॉट आर्टिफिशियली ट्राई टू रिनाउंस। त्याग करने की जरूरत नहीं है, आप मेहनत करिए। नहीं तो आप सोच रहे हैं कि हम बहुत अच्छा भक्ति का मूड डेवलप कर रहे हैं, पर बेसिकली हम मोड ऑफ इग्नोरेंस में जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं हम? मोड ऑफ इग्नोरेंस। आलस, आलस आ रहा है, आलस, है ना। हम काम नहीं करना चाहते, सब माया है प्रभु, सब माया है, क्यों काम करने का? माया नहीं है प्रभु जी, आप आलसी हो रहे हो, मेहनत करो, जाओ थोड़ी। माया माया तो वैसा नहीं करने का आपको ना। वी शुड नॉट बिकम लेजी, दैट इज मोड ऑफ इग्नोरेंस। अ डिवोटी, ही वर्क्स हार्ड, ही इज रिस्पॉन्सिबल, we are not irresponsible, right? In the name of spirituality we should not become irresponsible. ये सब माया है, सब नश्वर है, ये सारे रिश्ते नाते, ये क्या है? ये कुछ भी नहीं। ये तो वैसा है, वो एग्जांपल दिया ना स्क्रिप्चर्स में, जैसे नदी में पत्ते होते हैं ना, दो पत्ते मिल गए फिर पानी से वापस अलग हो गए, तो वैसे एग्जांपल देते रहो। ये क्या है? पति पत्नी का रिश्ता, बच्चों माता पिता का रिश्ता बच्चों के साथ, ये क्या है? तो दो पत्ते हैं, नदी में मिले, अलग हो जाएंगे। Why should I work for them? Why should I take care of them? Then you are going in a very wrong direction, प्रभु और माता जी। ये बहुत गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं आप भक्ति का, है ना। ये नहीं है इंटरप्रिटेशन भक्ति का। भक्ति में हम रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, है ना। हाँ, जब हम भक्ति में बहुत आगे की स्टेज में चले जाते हैं, बहुत आगे की स्टेज में, जिसमें हम दिन भर भगवान के नाम में डूबे हुए हैं, कीर्तन में डूबे हुए हैं, तब आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रह जाती। क्यों नहीं रह जाती? भगवान हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। यस, परफेक्टली राइट माता जी। क्योंकि उस टाइम भगवान हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, क्योंकि हम 100% सरेंडर कर गए हैं भगवान को। अभी नहीं किया है ना। अभी हमको भूख लगती है तो हम बराबर किचन में जाते हैं, थाली लेके आते हैं और खाते हैं। हम ये नहीं बैठते कि भगवान आएंगे देंगे तो चलेगा, नहीं देंगे तो चलेगा, वैसा नहीं है। वी आर नॉट बिहेविंग लाइक श्रीवास ठाकुर, 3 बार ताली बजाई और प्रसाद आया तो ठीक है, नहीं आया तो चलेगा, वैसा नहीं है, राइट। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ओनली कृष्णा इज आउट ऑफ दिस 3 मोड्स, हम नहीं है इन मोड्स के बाहर। तो हमको ट्राई करना चाहिए हम एटलीस्ट मोड ऑफ गुडनेस में रहे, इग्नोरेंस में न चले जाए भक्ति के नाम पे, राइट। एट द सेम टाइम वी हैव टू एंडेवर कि हम इन तीनों मोड्स के भी बाहर आ जाएं। शुद्ध सत्व बोलते हैं उसको, राइट, शुद्ध सत्व। So we have to come even out of these 3 modes also. Even mode of goodness is also binding. एग्जाम्पल क्या दिया स्क्रिप्चर्स ने इन तीनों मोड्स को? क्या एग्जाम्पल दिया है? एनीवन नोस? These 3 modes are like, okay, mode of ignorance is like a chain which is made of iron. Mode of passion is like a chain which is made of silver, and mode of goodness is a chain which is made of gold. अगर कोई आपको बोले मैं आपको सोने की जंजीर से बांध देता हूँ, will you be happy? वाह, सोने की जंजीर से बांध रहे हैं मेरे को, गोल्डन चेन। No, we won't be happy, right? अरे बांध तो रहे हो ना भाई, हमको नहीं चाहिए ऐसा। We want freedom, right? तो जो मोड ऑफ गुडनेस भी है ना, वो भी बांधता है हमको। मोड ऑफ गुडनेस क्यों बांधता है? ये मोड ऑफ गुडनेस पे भी हम जो कर्म करते हैं ना, उन कर्मों का हमको फल भुगतना पड़ेगा, राइट? यस, दैट इज आल्सो राइट, दैट वी बिकम टू सैटिस्फाइड, वी बिकम कॉम्प्लेसेंट। एक्चुअली भक्ति में भी हम कॉम्प्लेसेंट हो जाते हैं, लेकिन पॉइंट ये है कि अगर आप 3 मोड्स में रह के कोई भी कर्म करते हैं, है ना, तो वो कर्म आपको बांध देता है, क्योंकि उस कर्म का रिएक्शन आता है, और वो रिएक्शन आएगा तो आपको उसको भुगतने के लिए दुनिया में वापस आना पड़ेगा। यस, सो वी हैव टू ट्राई कि हम जितना भक्ति भाव में रह सकें उतना हमको रहना है, तो कम से कम मोड ऑफ गुडनेस में तो रहना है। पैशन एंड इग्नोरेंस आल्सो रिक्वायर्ड, बट इन अ वेरी लिटिल अमाउंट्स, यू शुड नॉट गो बियॉन्ड दैट। एंड कृष्णा इज अबव ऑल दिस, कृष्णा इज अबव ऑल दिस। हमको ये नहीं सोचना कि कृष्णा ने गोपियों के साथ डांस किया था तो कृष्णा मोड ऑफ पैशन में थे, ही वांटेड टू एंजॉय गोपीज। अरे भगवान, कृष्णा इज अबव ऑल दिस, he is above all these bodily concepts and all this, enjoying mentality and all that. He is above all this.
every action of Krishna, आचार्य ने उस पर कमेंट्रीज किए. कृष्णा जब पूतना आई थी और कृष्णा ने अपनी आंखें बंद की थी ना, यू नो दैट फर्स्ट टाइम पूतना केम. यस, थैंक यू गायत्री माता जी, श्रुति माता जी, यस सना. सो जब पूतना आई थी और कृष्णा ने आंखें बंद की तो उसके ऊपर आचार्य ने कमेंट्रीज की है. और वो कमेंट्रीज की है मतलब इतने रीजंस दिए कि कृष्णा ने क्यों आंखें बंद की. अब हम आंखें बंद करते कौन पूछता है, तुम करते रहो तुम लोग. तो कृष्णा का एक ही एक्शन होता है ना, उसको मीनिंग होता है. There's so many purposes are there behind it, right? Yes. कृष्णा ने मिट्टी का उसका इतना सारा आचार्य से कमेंट्री का कि क्यों किया. कृष्णा ने मुंह बंद किया, कृष्णा ने मुंह खोला और एक के ऊपर इतना है. Because Krishna is above these three modes. He can never ever do anything wrong. And we always do wrong. क्योंकि हम इन तीन modes में, right? So we have to try to rise above these three modes. भक्ति के mood में रहे हम. At the least, we should at least be in the mode of goodness, है ना? Okay? It's a very big topic actually. मैंने आपको बहुत जितना easy way में और जितना इसको छोटा करके बता सकता था बताया है. Maybe some other time we'll take it in more details. Okay? Okay. Any other questions or comments or anything which you like? This is how to know we are in sufficient quantity of the material modes. How to know? Okay, that is by our behavior. Our seniors can tell us. हमारे जो सीनियर्स होंगे ना, मतलब जो खुद मोड ऑफ इग्नोरेंस में है, अगर आप उससे पूछो कि क्या मैं मोड ऑफ गुडनेस में हूँ, बता सकते हो क्या? क्या लगता है आपको? Yes? नहीं बता सकता, राइट? तो जो मोड ऑफ इग्नोरेंस में है उससे तुम पूछो कि मैं मोड ऑफ गुडनेस में हूँ क्या? जो खुद अल्कोहल पी के पड़ा हुआ है उसको तुम पूछो बताओ मैं मोड ऑफ गुडनेस में हूँ क्या? कितना मेरे में सत्वगुण दिख रहा है तुमको? तो बोलेगा मुझे कुछ नहीं दिख रहा, चांद तारे दिख रहे हैं. तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि वी हैव टू टेक हेल्प ऑफ द पर्सन हु इज अबव अस, हायर, मच हायर, नॉट हायर, मच हायर, राइट? तो उनसे अगर आप पूछेंगे तो आपको बता सकते हैं आपकी बातचीत से आप किस तरीके से बात कर रहे हैं. दे विल पिक अप वेरी इजीली. दे विल टेल यू कि आप में कौन सा मोड प्रीडोमिनेंट है और कितना है, क्या है वगैरह. क्योंकि हम जब खुद का इंट्रोस्पेक्शन करते हैं ना तो बहुत बार गलत हो जाता है, राइट? क्योंकि हम जो इंट्रोस्पेक्शन भी कर रहे हैं उसमें हमारे जो थॉट्स और इंटेलिजेंस हम यूज कर रहे हैं उस टाइम भी हम मोड्स में अफेक्टेड हो रहे हैं. इज इट क्लियर प्रभु? शुद्ध सत्व फिर से बताइए ना, वो वीडियो फ्रीज हो गया था. ओके. शुद्ध सत्व माता जी उसमें क्या रहता है ना कि जैसे कि हम प्रभुपाद की बात करें या संत तुकाराम की बात करें तो ये लोग है ना, ये लोग भगवान की तरह ही हो जाते हैं. इन द सेंस इनकी जो क्वालिटीज होती है ना वो भगवान की तरह हो जाती है. इन द सेंस कि ये इन तीन मोड से अफेक्ट होकर काम नहीं कर रहे हैं, इसके ऊपर उठ गए. अब इनका हर काम जो है वो भगवान की खुशी के लिए. They are doing every act for the pleasure of the Lord. है ना? तो हम ये कंसेप्ट सुना होगा ना, कर्म, अकर्म, विकर्म, राइट? सो कर्म इज जब हम भगवान के स्क्रिप्चर्स के हिसाब से काम करते हैं, शास्त्रों के हिसाब से कर्म है, धर्म पूर्वक किया गया कर्म, है ना? विकर्म इज शास्त्रों के विरुद्ध, है ना? अकर्म इज जब हम भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं. The goal is only to please Lord. जैसे यशोदा माई है, यशोदा माई कृष्णा को बांध भी रही है, उनके मन में ये भाव है कि कृष्णा कहीं उद्दंड न बन जाए, बिगड़ न जाए, उनको आगे जाके नो किंग बनना है ब्रजभूमि का, राइट? सो मेरे लाला कहीं बिगड़ न जाए, उसका भविष्य खराब न हो जाए, इसके लिए वो उनको बांध रही है, दामोदर लीला, राइट? तो उनका भाव हमेशा ऐसा रहता है. कृष्णा को छोड़ के जा रही है, दूध गर्म हो रहा है, उबल रहा है, गिर रहा है और वो कृष्णा को छोड़ के जा रही है रोते हुए. तो उनका भाव है कि मेरे लाला को वो दूध मिलना चाहिए जो उन्होंने मतलब बहुत सारी अच्छी गायों से लिया था. दैट्स अ वेरी लॉन्ग पास्ट टाइम, बट द गोल इज टू प्लीज कृष्णा. सो सीमिंगली शी हैज अपसेटेड कृष्णा. कृष्णा को अपसेट कर दिया. कृष्णा रोने लग गए जब उन्होंने गोदी से उतारा. कृष्णा चिढ़ गए, गुस्सा हुआ कृष्णा. और गोल क्या था? कृष्णा के लिए सर्विंग या प्लीज करना या दूध देना, कृष्णा के प्लेस, राइट? और वैसे ही जैसे जो वो चाणूर, मुष्टिक और ये सब जो लोग थे, पहलवान लोग थे, ये जब कृष्णा से फाइट करे तो कृष्णा को मजा आ रही थी, राइट? कृष्णा से एंजॉयिंग, बट देयर गोल वाज नॉट टू प्लीज कृष्णा, सो दैट इज नॉट भक्ति, है ना? अनुकूल्यस्य, राइट? तो शुद्ध सत्व का मतलब होता है जब हम कृष्णा के प्लेजर के लिए काम करते हैं, दैट इज भक्ति, एंड दैट गोस अबाउट द थ्री मोड्स. ओके? So akarma and so Shuddha Sattva is same?
इन अ वे इट इज सेम, बट उसमें क्या रहता है ना माता जी, यू कैन से दैट टेक्निकली ये अलग भगवान के लिए होगा तो शायद अकर्म होगा, और भक्ति तो कृष्णा के लिए है, ऐसे कुछ है? माता जी भगवान तो एक ही है, कृष्ण ही है, जैसे सारे स्क्रिप्चर्स ने बोला है। बाकी जो है वो सब देवता है या देवी फिर देवता हाँ। है ना। तो देवी देवता के लिए जब भक्ति होती है माता जी, मोस्ट ऑफ द टाइम, इनफैक्ट ऑलमोस्ट ऑल द टाइम, वो भक्ति नहीं होती है, उसमें एक इच्छा होती है कि हम कुछ चाहते हैं उनसे, गिव एंड टेक रिलेशन है, तो उसको भक्ति नहीं बोल सकते या अकर्म नहीं बोल सकते। अकर्म का मतलब होता है जो मैं सेंटर नहीं हूँ, सेंटर वो है, कृष्णा इज सेंटर। कृष्णा इज सेंटर, उनके प्लेजर की वजह से गोपियां कर रही है। ओनली एंड ओनली गोल इज टू गिव प्लेजर टू कृष्णा, नॉट फॉर देयर प्लेजर, राइट। अब जैसे लोग बोलते हैं शनि भगवान को तेल चढ़ा के आओ, गोल ये नहीं कि शनि भगवान प्लीज हो, शनि भगवान खुश भी हो तो गोल ये है कि मेरे जीवन में जो बाधा है उनको हटा दो। यस जैसे या 16 सोमवार का व्रत कर रही है ना, तो गोल ये नहीं कि शिव जी प्लीज हो जाए, गोल ये है कि शिव जी प्लीज हो, मुझे अच्छा हस्बैंड या अच्छी वाइफ दे, जो भी। सो दैट इज नॉट अ कर्म, ये कर्म ही है। मतलब वी आर डिजायरिंग समथिंग, फ्रूटिव मेंटालिटी हमारी, है ना। यस यस, धन्यवाद। थैंक यू। ओके, सो एनी पॉइंट दैट यू लाइक? मुझे क्या बोला कुछ समझा ही नहीं। लाइक के बाद छोड़ो। Yes, Aarti Mataji, by performing pure devotion, a person goes beyond these three gunas. Wonderful, yes. Person goes beyond these three gunas. Wonderful, yes. तो हमको भक्ति करनी है, और भक्ति का गोल क्या होना चाहिए? शुद्ध सत्व। ओके, भक्ति का गोल होना चाहिए कि हम कृष्णा के प्लेजर के लिए, है ना? Yes, भक्ति का गोल ये नहीं होना चाहिए कि ना धन संपत्ति अगर आवे, कष्ट मिटे तन का, ये भक्ति नहीं है भैया, ये तो गिव एंड टेक है। हमने आपका नाम जप किया, भगवान आप पैसा दो, हमने आपका नाम जप किया, मेरा शरीर स्वस्थ कर दो, ये थोड़ा नहीं गिव एंड टेक है, राइट? ओके, सो वी विल एंड द क्लास हियर। ओ वेदांत गुरु। ओके, वी विल एंड द क्लास हियर। थैंक यू सो मच, मीट अगेन। चलो प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।